السلام علیکم، میں ہوں عرفان ملک پاکستانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور جلسے میں کپتان کا والہانہ استقبال پختون گانا اور ملی نغمے کے ساتھ۔ فیصل جاوید نے پشاور کی عوام کو موبائل فون کی لائٹ آن کرنے کو کہا اور پورا گراؤنڈ جگمگا دیا۔ نجم شیراز نے قومی ترانہ پڑھا اور 6 ستمبر کے شہید اور غازیوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ کپتان نے اپنے خطاب کا آغاز اپنے مخصوص انداز سے کیا۔ کپتان نے پشاور کی عوام کا دلکش انداز میں شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میں تو بات سیلاب زدگان کے حوالے سے کرنے آیا تھا کیونکہ میں نے لاسٹ وزٹ سکر کا کیا تھا، لیکن میں سب سے پہلے میں لاسٹ ویک سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور لوگوں کو کلمے کا مطلب بھی سمجھایا اور یہ بھی بتایا کس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے کردار سے ملیشیا اور انڈونیشیا کو فتح کیا۔ ایز یوزول وزیر اعظم میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ آدمی کو آپ اپنا پرائم منسٹر مانتے ہو؟ لوگوں کو دکھایا اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو پہلے واپس لاؤ، پھر لوگوں سے پیسے کو ڈیمانڈ کرو۔ زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کپتان کو الیکشن میں ہرا نہیں سکتے تو کپتان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں۔ توشخانہ غداری کا مقدمہ اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بچپن کے اندر بچوں کی کرکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جب بچے میچ ہار رہے ہوتے ہیں تو وکٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور مزید لوگوں کو بتایا اور ہمیں اداروں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری باتوں کو توڑ مروڑ کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ آرمی چیف کو میرٹ پر سلیکٹ ہونا چاہیے، اور یہ میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آصف زرداری کو اور نواز شریف کو آرمی چیف سلیکٹ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ دونوں چور ہیں۔ اپنی تقریر میں ڈان لیگ کا بھی ذکر کیا جس میں انڈیا راحیل شریف کو دہشت گرد کا سربراہ کہہ رہا ہے اور نواز شریف اس سے چھپ کے میٹنگ کر رہا تھا، اور آصف زرداری امریکن کو حسین حقانی سے کہلوا رہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو فوج سے بچاؤ، اور مزید کہا کہ کس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے ہماری گورنمنٹ کو گرایا، کرپشن کے ذریعے لوٹوں کو خریدا گیا، اور ایک پختون لوٹے کا بھی ذکر کیا اور لوگوں سے سوال کیا کیا ایسے لوگوں کو آرمی چیف کو اپائنٹ کرنا چاہیے، اور مزید ویڈیو سنوائی۔ سیاسی معاملات تھے، اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹس جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے۔ اچھا ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کا خدشہ ہے معلومات ہیں؟ جی ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہزادان عباسی، احسن اقبال اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے، تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس لیے ایک لارجر باتیں تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ۔ کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے۔ میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر
कि जो हमें कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो, उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नलों अपने हुदूद में रहो। बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा हो गया। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था, और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई, और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ़ नहीं है, ना हम ना वाकिफ़ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं, तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे
अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं शायद उनको समझ नहीं आई, शायद उनके तक पैगाम नहीं पहुंचा, वगैरह 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 करके इनको हाथ नहीं लगाया इनको। तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया, जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इकदाम करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को दिया जाता है। आप कौन होते हो किसी की तौहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तज़हीक करने वाले? ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग़्ज़ पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? ये तौहीन अदालत लगा देते हो। 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप। और ये लोग महंगाई ख़त्म करने नहीं, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए में नून ने की वीडियो सुनवाई, शहबाज गिल के तशद्दुद का बताया, इदारों को मजबूत करने की भी बात की। और इमरान खान ने कहा जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं तुमसे लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। और ये भी कहा कि मैं 7 महीने से अवाम में हूँ, जब मैं आप लोगों को कॉल दूंगा तो आपको निकलना होगा। और मज़ीद ये भी बताया कि उनके दौर में मईशत कितनी तरक्की कर रही थी और अब IMF कह रहा है कि बिजली और पेट्रोल के नर्ख मज़ीद बढ़ेंगे। और आखिर में ये कहा आप लोग मेरी टीम हो और मैं कप्तान हूँ और हम हकीकी आज़ादी के लिए जीतना चाहते हैं। अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अमन में आपके साथ हैं लेकिन जंग में नहीं। और जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करें।